Sit very comfortably with your back straight. Your eyes are closed. Start looking inside. Watch your mind, watch your thoughts. Simply watch, not to indulge in any thought, in any activity of mind. Simply watch. As a neutral energy, you simply look. You have third eye. You yourself is third eye. You have full potential to keep this watching process continue. Simply watch. Do not have any identification with the thought, whether it is positive or negative. Do not have any identification. Disidentify yourself. Keep some distance from the mind, as you are not a mind. You are a seer of it. You simply see. Develop some distance from the mind. You have self-remembrance. You are not a mind. You are not a thought. You are a seer of them. You keep your true nature. And remember it. Meditation is a direct approach towards mind. It does not require any technique or thought. It does not require any method, any technique to focus this mind or any concentrating point. It does not require any technique. Such techniques or methods do not work in transforming the mind. We have to watch this mind while living in our own true nature. I am a seer, I am a witness, I am an observer, I am a neutral energy, I am a seer. This watching process will help you to be thoughtless one day, which is full of bliss. That state is full of bliss, balance, harmony. When you become thoughtless, right thinking prevails, your wisdom prevails. This is a miraculous achievement, our own true nature. Simply watch. Utilize your third eye in the direction of self-discovery. Simply look whatever happening before you.
Meditation is a process, it's not a practice. While you are fully capable to see inside, simply, you have full potential to watch inside too. You have third eye to watch your own self. This special privilege has been provided to you by very birth, but you do not know it. Again and again, you come back to your own true nature. You are a neutral energy. You are an observer. Remember it. And simply look inside. Again and again. Your homecoming will help you to be more and more happy, healthy, and wealthy in spirit. If there is darkness inside, you keep looking on it. If there are thoughts, bundle of thoughts coming up again and again, some are positive and mostly negative. All thoughts which are coming and going inside, you simply watch them. This watching process will help you to be free from the mind one day. Ankar, Amin, Amen. अंधेरों में दिल के चिरागे मोहब्बत, ये किसने जलाया सवेरे सवेरे। तस्वर के सूरज की एक एक किरण से नया नूर पाया सवेरे सवेरे। अंधेरों में दिल के चिरागे मोहब्बत, अंधेरों में दिल के चिरागे मोहब्बत, ये किसने जलाया सवेरे सवेरे। ये किसने जलाया सवेरे सवेरे। लगन जिसके दीदार की जग रही थी, लगन जिसके दीदार,
लगन जिसके दीदार की जग रही थी, कई बार आया सवेरे सवेरे, ध्यान में वो आया सवेरे सवेरे, कई बार आया सवेरे सवेरे, अंधेरों में दिल के चिरागे मोहब्बत। किसी गम में मैंने जब कभी भी किसी गम में मैंने जब उसको पुकारा, किसी गम में मैंने किसी गम में मैंने जब उसको पुकारा, किसी गम में मैंने अपने मुर्शिद पिया को, किसी गम में मैंने जब उसको पुकारा, तरसता हुआ आया तड़पता आया, दौड़ा चला आया उसी वक्त आया सवेरे सवेरे, अंधेरों में दिल के चिरागे मोहब्बत, ये किसने जलाया सवेरे सवेरे। इबादत का सौदा इबादत का सौदा, अंधेरे अंधेरे इबादत का सौदा, बहुत सौदा कर चुके हो बाहर का, एक कमाई एक सौदा एक व्यापार, इबादत का भी कर लेना, उसकी बंदगी का, उसकी खोज तलाश का, उसकी याद का, उसकी समृद्धि का, उसमें जगमगाने का सौदा, सच्चा सौदा। अंधेरे अंधेरे सारी सारी रात तेरे पास है, टेंशन है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, नींद नहीं आती, बहुत अच्छा है। अपनी चेतना को उसके साथ जोड़िए, वक्त मिला कर टेंशन फ्री स्ट्रेस फ्री होने का,
वक्त मिला, अर्थात सब्स्टिट्यूट लीजिए। जरूरी है, निद्रा जरूरी है, ना सही ना सही। अपने नौनिहाल से जुड़ना, कसम है नौनिहाल तेरा भीतर का हृदय है। अपने मायके से जुड़ना, ये सब विदेश से आया है। टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हाइपरटेंशन, ये सब विदेश माइंड से आया है। माइंड इज विदेश, इस फॉरेन कंट्री से आया है। अपने स्वदेश में, अपने मायके में आ जाना। ऐसी नींद आएगी, जन्मों जन्मों की अनिद्रा खत्म हो जाएगी। रात भर जागते हैं दीवानी, दीवानों को कहीं बैठने की, रहने की, रात सोने की तनिक मात्र चिंता नहीं है। उन्हें जगह खोजने की, अनुकूल जगह खोजने की भी जगह चुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने सारी रात अपने मालिक से गुजारना है। ये आशिकी, ये हकीकी इश्क, ये असली इश्क जो ईश्वर से होता है, उसके दीवाने प्यासे साहसी हिम्मती रात को कहाँ सोना है, कैसे सोना है, किस जगह सोना है, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। जैसे भी रात गुजर जाए, किंतु गुजरे मालिक के साथ। ये इबादत का सौदा अंधेरे अंधेरे, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। अर्जुन, जब सारी कायनात सो जाती है, सारा संसार सो जाता, सारी दुनिया सो जाती है, मेरा दीवाना प्यासा, मेरा रिंद, मेरा पियक्कड़, मेरा दीवाना परवाना सारी सारी रात जागता है। मेरी प्यास में, मेरे दर्द में, मेरी दीवानगी में, मेरी याद में डूबा हुआ सारी सारी रात जागता है। क्या बताएं कि तेरी फुरकत के रात दिन किस तरह गुजरते हैं। हाल ये है कि तेरे दर की कसम, हम न जीते हैं न मरते हैं। सारी सारी रात अपने मालिक की गोदी में, मालिक के साथ रुदन ही रुदन, गंगा यमुना उसकी इंतजार में, उसकी प्रतीक्षा में। उठा हुआ रुदन तेरे रोम रोम को एनर्जेटिक बना देता है, तेरे जरे जरे को, रोम रोम को डुबो देता है, उस डिविनिटी में स्नान करा देता है। सारी सारी रात इबादत का सौदा चलता है, प्रेम प्यार मोहब्बत प्रभु से, इश्क, हकीकी इश्क का सौदा चलता है। ये सौदा, ये कमाई कृतकृत्य कर देगी, जीवन की आभा को जगमगा देगी, जीवन को जगमगा देगी, जहां विपरीत हालात छू नहीं सकता। बहुत संभव है सबके जीवन में, हम सबके जीवन में अत्यंत पॉसिबल है। काश की जीवन दिशा सही हो, अर्थात मार्गदर्शन मिल जाए, अपनी जीवन का, अपनी दिशा का, अपने भीतर उतर जाने का, अपने भीतर से कनेक्ट होने का, अपने भीतर से जुड़ने का। अगर थोड़ा सा भी रसायन मिल जाए, थोड़ी संगति, थोड़ा सानिध्य, थोड़ी वाइब्रेशन, थोड़ी दिशा निर्देश मिल जाए, तो मेरा जीवन सौभाग्यशाली हो जाए, मेरा जीवन ही शास्त्र हो जाए, मेरा जीवन वेद उपनिषद गीता रामायण ग्रंथ हो जाएगा, बाइबल कुरान शरीफ हो जाए, मेरा जीवन स्वयं शास्त्र हो जाए। नॉलेज ऑफ नॉलेज है, ट्रू लव,
God's love that's full of knowledge. सारी सारी रात अर्जुन मेरी कमाई करता है, वह अंधेरे अंधेरे कमाता है, दाएं बाएं को पता भी नहीं चलता। जैसे मिजाजी इश्क कमाते हुए दाएं बाएं को पता नहीं चलता, तुझे हकीकी इश्क उससे भी ज्यादा गहरा है। अर्जुन ये 3 घंटे तो क्या, 3 युग 3 काल भी गुजर जाते हैं तो पता नहीं चलता। 3 घंटे चली गीता, संदेश चला गीता का, 3 घंटे लगातार महाभारत की धरती पर 3 घंटे मेडिटेशन चला। कंसंट्रेशन नहीं, कंसंट्रेशन पावर तो अर्जुन के पास बहुत थी, किंतु फिर भी माइंड विचलित कर गया। कंसंट्रेशन पावर काम नहीं आई। हम सब कंसंट्रेशन करते हैं और उसी को हम मेडिटेशन कहते हैं। सब इस धरती के ऊपर कंसंट्रेशन कर रहा है, किसी ना किसी पॉइंट, बिंदु, फॉर्म, किसी ना किसी एक ऑब्जेक्ट को लेकर के उसको माइंड के प्रति प्रदान कर रहा है। माइंड को उसके साथ जोड़ने में लगे हैं, मेंटल एक्सरसाइज हो रही है। माइंड को कहीं भी फोकस करने में तुम प्रयास करते हो तो वो मेडिटेशन नहीं है। आज बी क्लियर, पूरी तरह सावधान हो जाइए, क्लियर हो जाइए, तभी तो जीवन बदलता नहीं, तभी तो जीवन में रूपांतर नहीं आता, तभी तो जीवन की आदतें टूटती नहीं, तभी तो स्वाभाविक स्थिति नहीं हाथ लगती। कंसंट्रेशन करते हैं हम, थोड़ी देर के लिए सोलेस मिलता, सॉल्यूशन नहीं, समाधान नहीं मिलता, सोलेस मिलता है थोड़ी देर का, उसी से हम संतुष्ट हो जाते हैं। ये गलती है, संतुष्टि नहीं मिलेगी सोलेस में। सांत्वना कभी संतुष्ट नहीं कर सकती तुझको, समाधान में तुझे संतुष्टि मिलेगी। समाधान मेडिटेशन है। जीवन की समस्याओं का समाधान मेडिटेशन देगा, कंसंट्रेशन नहीं देगा। अगर कंसंट्रेशन पावर देती तो अर्जुन जैसा शूरवीर बहादुर महाभारत का एक एक कदम जिसका शिखर बनाता है, आसमां बनाता है, वो कंसंट्रेशन पावर का मालिक भी भटक गया, क्योंकि मेडिटेशन नहीं है। वह बहुत डीप सेंस रखती है मेडिटेशन, समझना तुम कंसंट्रेशन करता हो, इसलिए कोई प्रोग्रेस नहीं, कोई प्रगति नहीं भीतर के अंधेरों को दूर करने में। आप केवल माइंड तक ही रह जाते हो, मेंटल एक्सरसाइज करते हो, जबकि हमने माइंड को डायरेक्ट देखने की कला में उतरना है। वहाँ माइंड के साथ ही जुड़े रहते हैं, माइंड को जोड़ने में लगे रहते हैं और जुड़ता नहीं, लगाने में लगते रहते हैं, लगता नहीं। वो किसी एक स्थान के ऊपर कंसंट्रेटिंग पॉइंट पर जोड़ने में लगे रहते हैं, जुड़ता नहीं। यही एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज तेरी टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन को मल्टीप्लाई करती चली जाती है, कोई सॉल्यूशन नहीं। महाभारत का योद्धा भटक रहा है, कंसंट्रेशन पावर का मालिक भटक रहा है। भगवान कृष्ण कंधे को पकड़ करके, बाजू पकड़ के कहता है, अर्जुन बता अब तेरी कंसंट्रेशन पावर किस काम की है? तेरी कंसंट्रेशन पावर तेरे माइंड को कंट्रोलिंग पावर प्रदान करे। कंट्रोलिंग पावर हो सकती है? नहीं। मैं देख रहा हूं भय, शोक, मोह का गुलाम अंधेरों में डूबा हुआ भगोड़ा बनने जा रहा, भटक रहा, अपने मन की दुनिया में भटक गया। कहाँ गई कंसंट्रेशन पावर? कोई रिलीफ देती? नहीं दे सकी। अर्जुन अब कंसंट्रेशन से मेडिटेशन की ओर आइए। आज तक तुझे गुरु मिले अर्जुन, कोई जागा पुरुष नहीं मिला जो तेरे इस तीर को भीतर की ओर चलाता।
जो तुझको उन्मुख करता अपने प्रति, जो तुझको सूरजमुखी फूल की तरह खिला देता भीतर के प्रकाश, भीतर के सूर्य के सामने, थर्ड आई के सामने तेरे माइंड को सूरजमुखी फूल बना देता। इसलिए आज तुम डीप डिप्रेशन में चले गए, आज आप बिल्कुल लॉस्ट हो गए माइंड में, कंसंट्रेशन वर्क नहीं कर सकी। आज तुम भय शोक मोह के रोगी हो गए, तुम डीप डिप्रेशन में। बाजू पकड़ करके संभाल लिया गुरु ने। क्या गजब है भीतर की साइंस, ये सुपर साइंस, क्या इंटरेस्टिंग, क्या गजब नेक्टर है या अमृत है। जब तुम इसमें उतरते हो, सारी सारी रात तुम डिस्कशन में रहना, संवाद में रहना, तुम्हें नींद छू नहीं सकती, किंतु विश्राम पूर्ण तुम टोटली फ्रेश पाओगे अपने आप को। नींद की जरूरत नहीं जहां मेडिटेशन छलके। सारी सारी रात दीवाने जागते हैं। इबादत का सौदा अंधेरे अंधेरे, इशारों इशारों में समझना। ज्यादा कहानियां कहने की जरूरत नहीं है प्यासे दीवानों, मेडिटेटर्स, इशारों इशारों में चले आना। इबादत का सौदा अंधेरे अंधेरे, इबादत का सौदा। इबादत का सौदा अंधेरे अंधेरे, मुनाफा कमाया सवेरे सवेरे, मुनाफा कमाया, क्या गजब कमाया, मुनाफा कमाया सवेरे सवेरे। अंधेरों में दिल के चिरागे मोहब्बत,